M6S Buffalo nickel. Yeah. But it's in not in a good condition, Okay. really. Yeah. So it's kind of a mix, but yeah. So kind of more towards US coins, but also keeping a balance with Indian currency as well. All right. So, are you referring to any book or any website for this? So PCGS and NGC की जो websites होती हैं for looking at the prices. Obviously India में आते आते shipping की वजह से coins expensive हो जाते हैं. But still, I'm able to get my hands over some coins, and then I'm also looking into varieties like DDOs and DDRs from American coins. So yeah. Yeah, and I'm sure I think India में भी if you want, India में भी बहुत सारे dealers होंगे जहाँ से आपको American currency मिल सकती है. So if you don't want to pay extra shipping charge, you can try searching them here also in India. Yeah. So I continue to build on that. So मेरा vision यही है कि to create a portfolio of American currencies जितना हो सके. Yeah. And then let's see. I think I bought recently from them. They had an Eagle right now for 2004. But then because I bought this one, which is like MS70, it is graded. So I did not bought them. But I think I previously bought some $50 and some silver proof coins from them. Okay. From Manav. Okay. Yeah. Okay. Good evening, everyone. I'm Anu Pengorani. I deal in specialized wheelchairs. And I've joined this group of Raj Gyaniji was because my father was in coin collection. My father was collecting a lot of coins, notes, birthday notes, and 786 series notes. And I'm actually very thankful to Mr. Raj Gyani because in this COVID time, it kept him occupied and it gave me contact for Falcon Coins, wherein I bought all these books. Okay. Okay, so I stay in Goa and my father stays in Mumbai, and I used to send these books to him so that it keeps him occupied in the COVID thing. He was looking forward to come to this coin. There was an exhibition in Mumbai on 17th and 18th, and it got cancelled because of COVID. And he wanted to meet Mr. Raj Gyani as well personally. And we had all planned that I'll come from Goa and meet him. But, with very heavy heart, I have to say that my father passed away just on 12th of April. And I came down to Mumbai. Now I'm with my mother. And I thought I'll come to this forum to say that, to thank Mr. Gyani because he used to follow his things on YouTube. And he had a huge collection, which he says he wants to pass it to my nephew now, who's just 12 years, to look forward and continue with this collection. But he really enjoyed looking at the videos, learning from it, improving his collections. And I helped him to buy a lot of coins, books, everything from Falcon. Sitting in Goa, I used to order from there. He gave a lot of blessings to Asha. And I told him that I'm in contact with Asha to get these coins. And we were planning to come and visit the exhibition. But unfortunately, it cannot happen. But anyway, thank you very much, Raj Gyaniji. It helped a lot. He actually wanted Mr. Raj Gyani to come and sit with him and look at his collection, which I know would have been difficult. But we said we'll give it a try. It doesn't matter. I'll further help my nephew now with his collection. Yeah. And because of this, now I'm looking at the notes both sides, reading the numbers, saying I'll keep it for my dad. Yeah. I collected a lot of Portuguese coins for him, which I couldn't give it to him. Okay. I said we'll come and give it to him, but it's with me anyway. It adds to his collection and his legacy. Yeah. Thank you, Rajiv. Really appreciate your channel. Thank you, sir. Hello. हेलो एक्चुअल में मेरे पास जो कलेक्शन है वो मुझे फॉर फादर से गिफ्ट मिला है, इसलिए मुझे ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है. अभी मैं गेन कर रही हूँ. मेरे पास जो कलेक्शन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही हूँ कि क्या कलेक्शन है, क्या उसकी वैल्यू है, कितना इम्पोर्टेंट है. और
बस और मैंने ये बार बॉम्बे एग्जीबिशन में स्टॉल भी लिया था, अच्छा जो पोस्टपोन्ड हुआ है, मई लास्ट वीक में है। जी जी तो आई विश कि वो सब कुछ सही हो और वो एग्जीबिशन कंटिन्यू हो और हम सब मिले वहां पर। जी जी। तो आपने स्टॉल किस उद्देश्य से लिया? हाँ जी, स्टॉल लेने के पीछे क्या कारण रहा आपका? स्टॉल क्यों लिया आपने? स्टॉल मैंने इसलिए किया कि मैं एक्चुअल में मैं डिस्प्ले करना चाहती थी। मेरे पास जो अच्छा, जो मुझे लग रहा है जो अच्छा है, और उससे पता भी चले कि उसकी वैल्यू क्या है। और मुझे बाय और सेल करने में भी इंटरेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है कि कलेक्ट ही करना है। हाँ 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 तो इसलिए कि लोगों को भी पता चले कि मेरे पास क्या कलेक्शन है, और उसके मेरे पास जो कलेक्शन है उसके बारे में भी मुझे इंफॉर्मेशन मिले। एग्जैक्टली चलिए, क्योंकि अच्छा मुझे विचार है इतना, आपका। हाँ एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है कि कोई ऐसी चीज है जो मुझे कुछ पता ही नहीं, जो मैंने आज तक मिस कभी मैंने कोई वीडियोस में भी नहीं देखा है, कोई एल्बम में भी नहीं देखा है, कहीं पर भी देखा ही नहीं है। कभी कभी तो कोई समझ में ही नहीं आ रहा है क्या है। बस काले काले कोई कॉइन्स है। उसकी वैल्यू है कि नहीं है वो भी नहीं पता मुझे। बस फोर फादर्स के वहां से गिफ्ट मिला है, तो ऐसे बॉक्स में डाले हुए सब पड़े हैं, तो पता होना चाहिए। उस वजह से मैंने सोचा कि थोड़ा सा कोई नॉलेज मिल जाए, पता चल जाए। मैं यही शुभकामना करता हूँ मैडम कि आप अपना पूरा जो कलेक्शन है आप अच्छी तरह एक एल्बम में एक एक कॉइन को डिसाइफर करके एक एक एल्बम में डालें, तो उसकी खूबसूरती दुगना हो जाएगी। वो करना चाहती हूँ, मगर कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या करूँ, कोई गाइडेंस नहीं मिल रहा है। तो मैंने कहा थोड़ा सा ग्रुप में ऐसे कांटेक्ट में रहूँ, कुछ ऐसे हो तो पता चले। क्योंकि जब खोल के बैठ तो कुछ समझ में आता है, वापस वाइंड अप करके रख देती हूँ। कुछ डायमंड समझ ग्रुप में भी नहीं आता। काफी सारे नॉलेजेबल लोग हैं, तो आपको उस पर भी कुछ फोटोग्राफ डालेंगे तो आइडेंटिफाई कर देंगे। जैसे अयूब जी अब है, वो भी, उनका भी काफी अच्छा नॉलेज है, तो आप ग्रुप में भी फोटो डालने ओके, से डेफिनेटली डिसाइफर हो ही जाएगा आप लोग का। चलो मैं ट्राई करती हूँ। आप दिन में एक फोटो डाल दिया करो ग्रुप पे और आईडी प्लीज करके लिख दिया करो, तो कोई ना कोई उसके बारे में पूरी डिटेल दे देंगे। डेफिनेटली। ओके, अच्छा सर, आप पुणे आने वाले थे मैंने सुना था। अभी मीन्स आपका आने का कोई है विचार? हाँ, अभी तो मुझे ऐसा फिलहाल लगता है नहीं कि है। आप कब आएंगे, क्योंकि मैं मैं इंतजार जिनके कर लिए रही हूँ पूना जा रहा था एक वो साल सब से इधर आ गए इंतजार। इंदौर में। जिनके लिए मुझे पूना जाना था वो सब एक एक करके इंदौर आ गए। अच्छा, क्योंकि मैं एक साल से इंतजार कर रही हूँ सर। जी जी चलो शायद हम भी आपको मिलने इंदौर आ जाए, जरूर जरूर मुझे ऐसा आएंगे। आप या मनप्रीत जी यूएस करेंसीज भी इकट्ठे करते हैं या आप इंडिया पे डेडिकेटेड हैं? यूएस है मेरे पास, बहुत सारा कलेक्शन है, पर एक्चुअली हम्म मेरा भी ऐसा ही था कि 45 ईयर्स से सब मैं इकट्ठा कर रहा था और उनको हम्म बोरियों में भरता जा रहा था। तो इसलिए मैंने बच्चों को इस फील्ड में डाला, उनको बोला, इंटरेस्ट क्रिएट किया और दोनों में अच्छा इंटरेस्ट आ गया। और अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जितना ज्यादा से ज्यादा व्यवस्थित करके दे पाऊँ इनको। कोयले और हीरे मिले हुए रखे हैं मेरे पास, तो उसमें से हीरे निकालना है। मुझे पता है कि उसमें हीरे हैं बहुत सारे, बहुत बस डिफिकल्ट वो है, वो बहुत छांटना डिफिकल्ट है। है। राइट राइट। एंड सर, आपने आपका ग्रेडिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा है इंडिया में, कि आपने टोडी वाला से या मधुरा आर्ट से कोई कॉइन भेजा हो ग्रेड कराने के लिए, और ग्रेडिंग के अंदर कितना समय लग जाता है, और आप जितनी की कॉस्ट होती है क्या वो रिटर्न हो पाती है या नहीं हो पाती है? ग्रेडिंग की कास्ट तो रिटर्न हो जाती है, क्योंकि ग्रेडिंग कराने के बाद डेफिनेटली उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, ऑथेंटिकेट हो जाता है तो उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है और आपको बेचने में आसानी भी होती है उसको। राइट राइट। और लेकिन मैंने एक्चुअल में अभी तक पर्सनली एक भी कॉइन ग्रेडिंग नहीं करवाया है। ओके। हाँ, मेरे पास जो है ग्रेड किए हुए ही मैंने लिए हैं, मेरे कलेक्शन में बहुत से कॉइन हैं ग्रेड किए हुए ही मैंने लिए हैं, पर मैंने खुद एक भी ग्रेड नहीं करवाया। राइट राइट। ओके। मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, ग्रेडिंग मैंने 2-3 जगह से करवाया है, जैसे मारुधर आर्ट से या फिर टोडी वाला है या फिर और एक बॉम्बे कंपनी है। यहाँ पे ग्रेडिंग नहीं होता है, ये लोग जनरली जितने भी डीलर्स है सब हांगकांग जाके ग्रेडिंग करवाते हैं, और दे टेल अस दैट अबाउट 2 to 3 months लगेंगे,
बट इट्स रियली अ टीडियस जॉब, क्योंकि हमको रेगुलरली फॉलो करना पड़ता है। एंड मेरा एक कॉइन मैंने ग्रेडिंग के लिए दिया था, इट केम आफ्टर अ ईयर। तो माय गॉड, ओके, तो इट्स बेटर। कहीं ऐसा नहीं है कि उनकी गलती होती है इसमें, कई बार क्या है कि मौका नहीं मिल पाता उनको जाने का वापस हांगकांग, क्योंकि वो हांगकांग में दे के आ जाते हैं और तभी के तभी ग्रेडिंग नहीं होता है। इट टेक्स सम टाइम, 4-5 2 डेज weeks, या yeah, 2 1 to 3 वीक, हाँ, weeks. 2 to 3 weeks। तो कॉइन दे के आ जाता है, तो इट टेक्स सम टाइम। अगर आपके पास पेशेंस है तो डेफिनेटली आप कोई भी कंपनी को अप्रोच कर सकते हैं जिनके जो भी ग्रेडिंग करवा सकते हैं। राइट, और उसका वैल्यू डेफिनेटली आपको मिलेगा ग्रेडिंग का। ग्रेडिंग करवाना कभी भी अच्छा है, पर अगर आप समझिए कि अगर आप पर्सनली जाके हांगकांग में या पीसीजीएस के एनजीसी की कोई भी ऑफिस में जाके करवा सकते हैं, दैट्स द बेस्ट। राइट, ओके। तो पर्सनली जाके कराएंगे तो जल्दी हो सकता है। नहीं, 20 days, आई थिंक 20 days तो मिनिमम लगता है बेसिकली। ओके। यहाँ पे ऑन साइट ग्रेडिंग का भी बात हुआ था पिछले साल कि पीसीजीएस वाले आके बैंगलोर में ऑन साइट ग्रेडिंग करेंगे, मतलब बैंगलोर में ही आके यहाँ पे रुक के ओवर अ पीरियड ऑफ 10-15 डेज यहाँ पे ग्रेड करके इमीडिएटली दे देंगे नोट्स। बट कोविड के कारण वो भी कैंसिल हो गया। बट यहाँ पे काफी सारे डीलर्स हैं जो अप्रोच कर रहे हैं इन कंपनीज को कि इंडिया में आए और यहाँ पे एक ऑफिस सेटअप करे या फिर यहाँ पे ऑन साइट ग्रेडिंग चालू करें। हमारे भी कोशिश चल रही है कि हम ऐसा कुछ सुविधा इंडिया में लेके आए, बट इट्स बीन डिफिकल्ट क्योंकि ये लोग इंडिया को अभी इतना पोटेंशियल मार्केट नहीं मानते हैं। जबकि बहुत है, गलत बात है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रोबेबली ये यहाँ पे भी आ जाएगी। राइट। हमारा ऑफिस जो है बैंगलोर में है। बैंगलोर। आप हार्दिक जी को नहीं जानते हैं? अनूप जी? सॉरी, आप फैल्कन से हैं, इज इट? सॉरी, मेरी डीलिंग आशा से हो रही थी इतनी बार। काफी सारे कॉइन्स लिए हमने उनसे और उन्होंने वो फ्री एल्बम भी दिए थे लास्ट टाइम। मतलब ये अपना सौभाग्य है कि हार्दिक जी अपने साथ मीटिंग में हैं। बाकी वैसे उनकी पूरा शोरूम जो है वो सब स्टाफ ही संभालता है। वो मतलब शोरूम पे भी कई बार ऐसा होता है कि 2-2, 4-4 दिन, 6-6 दिन नहीं जाते हैं, पूरा स्टाफ ही सब मैनेज करता है। लेकिन वो अपना कीमती समय निकाल के हमारे साथ मीटिंग में इतना टाइम दे रहा है, हम बहुत आभारी हैं उनके। ग्रेट। आई थिंक ये मीटिंग एक हफ्ते पहले रखते तो शायद मेरे फादर भी देख सकते थे इसमें। He would have been very happy to meet Hardik and really sorry also. Anyway, my father enjoyed all the birthday notes also and सिर्फ मेरा रह गया था। मेरे सिस्टर का आया, मेरे ब्रदर का आया, उसकी वाइफ का आया। सिर्फ मेरा अभी लास्ट मेरी वाइफ का और मेरा रह गया सिर्फ। Okay. Anyway, it has to happen. Things have to happen this way. सर पिछले हफ्ते में भी बहुत ज्यादा थोड़ा सा मतलब अपना तो परिवार है तो मैं बता सकता हूँ कि पिछले हफ्ते ही मुझे पता चला कि मेरे पापा को कैंसर है। तो फिर मंडे से कीमोथेरेपी चालू की है उनकी। तो मैं भी काफ़ी पिछले 6-7-8 महीनों से बहुत इन्हीं कामों में बिजी हूँ। हॉस्पिटल से चक्कर लग रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से थोड़ा सा जो करना चाह रहे थे हम कि इस डायमंड ग्रुप में हम कुछ करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, तो उसके पीछे बहुत से कारण होते हैं। मतलब इतना तो आप समझ में आ ही गया होगा आपको मेरे से बात करके, मेरे वीडियो देख के, या एक इंसान का मतलब पता चल जाता है कि उसकी नीयत कैसी है, खराब है, अच्छी है, या क्या बोलना चाह रहा है। तो मैं दिल से बहुत कुछ चाह रहा हूँ कि मैं इतना करूँ, लेकिन ऊपर वाला भी मेरे को थोड़ा सा बिजी रख रहा है दूसरे कामों में। शायद वहाँ मेरी ज्यादा जरूरत समझ रहे हैं वो। तो इस वजह से मैं आपको उतनी सेवा नहीं दे पा रहा हूँ जितना सोच के मैंने इसको चालू किया था। पर फिर भी हर दिन ये सोचता हूँ कि रात गई बात गई, कल से नया चालू होगा। तो किसी दिन तो ऐसा आएगा कि मैं उस दिन से आपको ऐसी सुविधा दूंगा और ऐसा कुछ नया चालू करेंगे कि पीछे की जितनी भी गलतियां हुई है, जितना भी कम दे पाया हूँ, वो सब भरपाई हो जाएगी। नहीं हो तो हो ही जाएगा। अभी लास्ट नहीं, आपने इतना कुछ दिया, अभी तो हम कैचअप नहीं कर पाए, तो कोई बात नहीं। अभी आगे जो आएगा तब तक मिल जाएगा सब। हेलो। हाँ जी, हेलो तेजस सर। या नमस्कार।
मैम मैं एक चीज पूछना चाह रहा था कि एक्चुअली मैं भी थोड़ा सा कलेक्शन वगैरह का मैं शौक रखता हूँ और कुछ मेरे फादर वगैरह के पास से मेरे पास आए हुए हैं, तो भी आपका जो पीसीजी ग्रेडिंग है दिल्ली के अंदर, दिल्ली में नहीं बेंगलोर में है ना मैम दिल्ली में भी ब्रांच है उसका, मैंने एड्रेस अच्छा। निकाला था राजेंद्र प्लेस में। तो एक्चुअली मैंने उनसे पूछा था कि कुछ कॉइन्स वाली ग्रेडिंग करानी है, बट उन्होंने मुझे बोला वो सब सिल्वर कॉइन्स और गोल्ड कॉइन की करते हैं। जो कुछ मेरे पास, मैं आपको एक शो करता हूँ अभी, इस टाइप के कुछ ये मेरे पास रखी हैं। आप डायमंड ग्रुप में है ना? या मैम, या सर। हाँ, तो आप एक एक कॉइन डेली पोस्ट कर दिया कीजिए या एक दिन छोड़ के कर दिया कीजिए, उसके दोनों तरफ की फोटो और आईडी प्लीज करके आप ग्रुप में डालिए, तो हम लोग बता देंगे। कोई भी मतलब हमारे ग्रुप में से, डायमंड ग्रुप में बहुत से हैं ज्ञानी लोग, मैं तो सिर्फ नाम का ही ज्ञानी हूँ। नहीं नहीं सर, नहीं सर, क्या बात है। तो कहीं ना कहीं से आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। जो दिल्ली में है वो पीसीएस है, वो पीसीजीएस नहीं है, वो उनकी ब्रांच नहीं है, वो इंडिपेंडेंट फर्म है। पीसीजीएस का सिर्फ हांगकांग में ऑफिस है, इंडिया में कोई ऑफिस नहीं है। सर वो पीसीजी ग्रेडिंग लिखा हुआ है इसमें। जो दिल्ली के ऑफिस जैसे बताया था पीसीजी, वो इतनी रिलायबल नहीं है, इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं है उसकी। एग्जैक्टली। आप इस चीज में ध्यान रखें कि ऐसे काफी सारी फर्जी कंपनीज है या फिर इतनी ऐसी भी कंपनीज है जो रिलायबल नहीं है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, ग्रेडिंग करवाए या ना करवाए कॉइन की कुछ अप्रिसिएशन होने नहीं पाता। ओके ज्ञानी जी, एक चीज और मुझे थोड़ी सी प्लीज हेल्प कीजिए कि कुछ मैं इस टाइप का कुछ कलेक्शन करके इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इस पर मैं कैसे इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ, ये देखिएगा सर, कुछ आपको शायद दिख रहा हो। इसके लिए तो आप क्या डेफिनेटिव कॉइन और कमेमोरेटिव कॉइन के एल्बम आते हैं जी, है ना, फोल्डर सहित, वो वाले आप मंगवा लीजिए और उसमें आप इसको अरेंज कीजिए, तो आपको मालूम भी पड़ेगा कि कौन कौन से आपके पास हैं और कौन कौन से नहीं। तो फिर जो नहीं है, और कोशिश करिए ना ये चाइनीज आइटम में मत आप यूज कीजिए। हम क्या डिफेंस फैमिली से ना, तो हमको थोड़ा अच्छा नहीं लगता है चाइनीज आइटम देख के। ठीक है। हाय एवरीवन। हेलो। शशि मौली हियर। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। My two little kids wants to say hi to Raj Gani बड़े हो गए sir बच्चे। and Manpreet. All of them met you in the Bangalore Hello. exhibition. Also, wife is here. She wants to say hi. Then I'll speak. Okay. Hello, ma'am. How are you? Hello. I'm fine. How are you? I'm very good. Okay, just to start with, definitely the second one. I think in between one meeting I missed out, I believe. And hi to Hardik Parekh sir. You wanted to meet me in your office, and I'm here. So thanks to Raj Gani sir. Okay, Raj Gani sir was telling always whatever the collection he had from the younger days, it was just like pada hua tha karke. Same like with me also, without knowledge, simply it was only chiller. Then once I started, seeing the videos of Raj Gani sir, I wanted to transfer some good asset to my children. So I started educating them and also, organizing all my collection. I'm not a big collector, but whatever I had, so I made it, in a proper fashion. So this is the outcome of Raj Gani sir video. So the complete, I have only a couple of coins I have left out to complete this commemorative coin section. So this is one I completed. Just 2 coins left out. And this is just the notes I had, and this is the note which was gifted by Raj Gani sir. And thank you very much for that. So this one and one more over here. So this is a nice platform to show you all people. These 2 notes were gifted by Raj Gani sir, and it's in a very good. I mean, for my collection, वो रौनक बढ़ा दिया करके बोलते हैं ना, वैसा है. And also, I'm on the verge of completing my definitive series also. So almost done. 90% I have finished with the definitive series. 5 paise to all 1 paise to complete 10 rupees tak. So 2 albums I have completed already. And this is my little collection of all these British India coins and Dutch India coins, whatever I had. So I have organized it in an album. So this is the outcome of Mr. Raj Gani sir. I don't know how much value this has got, but
the organizing things, and it gives, as he said, every day one by one album. If you see it again and again, you'll be watching the same thing, and it gives lot of pleasure. And whatever the hard work we do in collecting things, and definitely Falcon is there to support, always arguing with Hardik, negotiating things, and just to increase the collection whatever we have. Most of the albums are from Falcon only. Still 8 more albums I have completed, but I'm due to so many people are waiting in a queue to show or talk to you people. And definitely you're giving good knowledge, Gyani sir. Today also Ask TCP 72 I watched, and really worth. 30 minutes video was there. I think this is the longest video what I have seen. 15, 20 minutes, 21 minutes, yes, I have seen. This is a 30 minutes video, and still it's incomplete what he said. So the second part is coming out with that. Once again, I pass on my heartfelt condolences to Rajgyani sir family. And during these bad days, I know you have lost many family members. Really sorry for that. And also all the members get their soul rest in peace. And also give a lot of strength to you to do such a great job. Hats off to you, and once again, I'm very thankful to your work and grateful to your work. Thanks a lot. Thank you very much. Good evening, sir. Good evening. क्या बात है, आप तो कार में बैठे बैठे? Sir, I was on duty, so मैं किशन जैन from बिहार, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट. मधुबनी सुना होगा? हेलो. हाँ जी सुना है सर. हाँ, मधुबनी बिहार से हूँ मैं सर. एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ जी. बिहार सरकार का. जी. और आज कुछ कोरोना के चलते कुछ जरूरी काम पड़ गया था, तो मैं निकला था. तो मेरे पास कलेक्शन सर, एक्चुअली जब मैं था बचपन में था तो मेरी नानी जी नेपाल के किसी राजा परिवार से आती थी. जी. तो उनके पास कुछ कलेक्शन थे, ठीक है. तो उन्होंने मुझे दिया, तो मैंने उसको रखा. फिर पढ़ाई के इधर कुछ पीसीएस की तैयारी वाड़ी के चक्कर में उतना तो नहीं हुआ, लेकिन अब मैं पिछले साल मैंने ज्वाइन किया बिहार गवर्नमेंट को. उसके बाद एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर, एंड देन आई हैव स्टार्टेड कलेक्टिंग. और मेरे पास भी काफी अच्छे कलेक्शन है, जैसे ऐसे धीरे धीरे. और जब से आपकी वीडियो मैंने देखने लगा, तो मैं मतलब मुझे लगता है कि मेरे पास सच में इतने अच्छे हो सकते हैं क्या. जी. और मुझे खुद भी खुशी मिलती है उनको देख करके. और शायद यहाँ हम लोग के इधर से तो बहुत कम लोग जाते हैं कलेक्शन में, लेकिन मेरा इंटरेस्ट जगा, और काफी मेरे परिवार वाले भी काफी खुश हैं कि कुछ तो कुछ अच्छा हो रहा है. और मैं किसी को कभी कोई गिफ्ट भी देता हूँ, जैसे बर्थडे नोट में या फिर कुछ अलग भी, तो काफी ज्यादा खुश भी होते हैं. एक अलग तरह का यूनिक सा प्रेजेंटेशन भी होता है देने के लिए. जी. और सर आपका सहयोग बहुत अच्छा है, ठीक है. आप ऐसे ही स्वस्थ रहे, अच्छे रहे. शुक्रिया सर, शुक्रिया. आपकी दुआओं की बहुत जरूरत है हमें. जरूर. और सर एक छोटा सा एक क्वेश्चन था सर, कि एक 20 पैसे में ऊपर सूरज का चित्र आता है जी, उसमें सर ये सन की रेज का भी कोई डिफरेंस है क्या? सिर्फ उसमें प्रूफ कॉइन और जो जनरल सर्कुलेशन में जारी हुए थे उसी में रेट में फर्क है. अगर प्रूफ कॉइन में से निकला हुआ है तो ही उसका रेट ज्यादा है, बाकी ऐसा कोई सन में कोई फर्क नहीं है. अच्छा. और नॉर्मली मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि किसी भी कॉइन का रेट अगर 1000 रुपए से कम है तो उसको आप जब बेचने जाओगे तो आपका 100 रुपए में भी नहीं बिकेगा. खरीदने जाओगे तो आपको 1000 रुपए में जरूर मिल जाएगा, क्योंकि जब आप खरीदते हो तो वो दुकानदार यूएनसी कंडीशन में आपको कॉइन देते हैं, और जब आप बेचने जाते हो तो 99% आपके पास यूज कंडीशन में होते हैं. सही बात. तो ऐसा जैसे हर चीज में मैं बताता हूँ बार बार कि मान लो आप होलसेल और रिटेल में कोई भी चीज खरीदते हो. सब्जी का उदाहरण कई बार दिया मैंने, टमाटर का दिया, प्याज का दिया, कि यहाँ पे 2 रुपए किलो मिल रहा है, वहाँ पे 20 रुपए किलो मिल रहा है, मॉल में 100 रुपए किलो में बिक रहा है. लेकिन 100 रुपए किलो में जो बेच रहा है वो आप ले जाके उसको बोलोगे कि मेरे से 50 रुपए किलो में ले ले, तो वो नहीं लेगा ना, क्योंकि वो तो 2 रुपए किलो में लाके 100 में बेच रहा है. लेकिन जो 10 रुपए किलो में बेच रहा है तो उसके लिए उतना. अब जैसे मान लो किसी भी दुकानदार की आप देखो तो उनके पास इतना स्टाफ रहता है, इतना सारा स्टॉक रहता है, कितने सालों की मेहनत रहती है, और 365 दिन सेवा देते हैं. तो अगर आप उसकी सैलरी के हिसाब से उनका पेमेंट करना चाहो तो जितना वो कमाते हैं ना
तो उनको ये मान लो कि सैलरी उनको साल की बजाय 6 महीने की ही मिलती है। जितना काम वो अपनी दुकान पे खुद करते हैं, उतना काम अगर वो किसी के अंडर में करते हैं और उनको सैलरी दी जाती, तो शायद उनको ज़्यादा प्रॉफिट होता बजाय इसके। सही बात। लेकिन ये चीज़ कस्टमर नहीं समझता है। कस्टमर क्या सोचता है, अरे ये तो 2 रुपए का सिक्का है, इन्होंने 10 रुपए में बेच दिया। हाँ नहीं, लेकिन है ये बात, लेकिन मुझे तो अभी बेचने का तो कोई मेरे पास कलेक्शन है, लेकिन मैं कभी बेचता नहीं उसको। अब जितना ज्यादा इकट्ठा हो जाए, काफी अच्छे हो जाए मेरे पास, कभी मौका मिले आपसे तो आपको बताऊं, दिखाऊं। जरूर 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 मिलेंगे अपन। मन पे शशि क्या, हाँ शशि मेहता जी हैं क्या? एक सेकंड में चेक कर लीजिए। हाँ जी हैं ग्रुप पे। हैं क्या? क्योंकि शशि मेहता जी, हाँ नमस्ते जी। मैं चाह रहा था शशि मेहता जी आप भी हैं तो थोड़ा सा आप हमें म्यूल नोट के ऊपर कुछ बताएं ना, तो थोड़ा फायदा हो जाएगा हम सबका। ठीक है।